خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈیفنس فیز 6 میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، دو نوجوان جاں بحق، متوفین کی شناخت ذیشان اور سہیل کے نام سے ہوئی، دونوں آپس میں کزن تھے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، میتیں مردہ خانے منتقل، CCTV فوٹیج سمیت دیگر شواہد کی مدد سے کار سواروں کی تلاش جاری ہے۔ افسوسناک واقعے بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفنس فیز 6 میں یہ واقعہ پیش آیا اور جہاں دو نوجوان اس گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ متوفین کی شناخت ذیشان اور سہیل کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس نے اس حوالے سے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور میتیں مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ CCTV سمیت دیگر شواہد کی مدد سے کار سواروں کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیفنس فیز 6 میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، جس کے نتیجے میں دو نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ متوفین کی شناخت ذیشان اور سہیل کے نام سے ہوئی، دونوں آپس میں کزن تھے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، میتیں مردہ خانے منتقل، CCTV فوٹیج سمیت دیگر شواہد کی مدد سے کار سواروں کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیفنس فیز 6 میں تیز رفتار موٹر سائیکل کو ٹکر، دو نوجوان جاں بحق، متوفین کی شناخت ذیشان اور سہیل کے نام سے ہوئی، دونوں آپس میں کزن تھے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ درآمد کردہ الیکٹرک بسوں کو ان لوڈ کرنے کا عمل مسائل کا شکار، کنٹینر سے بسیں اتارنے کے لیے ریمپ نہ ہونے پر روایتی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لفٹرز کے ذریعے بسوں کو اتارنے کے دوران حادثات اور نقصانات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے درآمد کی جانے والی 12 میٹر لمبی الیکٹرک بسوں کو ان لوڈ کرنے کا عمل سنگین مسائل کا شکار۔ ان لوڈنگ کے دوران ٹریفک پولیس کے 2 سے 3 لفٹرز کو ملا کر ایک بس کو نیچے اتارا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر ان لوڈنگ کے دوران شیشے ٹوٹنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لفٹر کے ذریعے بس کو نیچے اتارتے وقت اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہ ناقص ان لوڈنگ طریقہ کار نہ صرف الیکٹرک بسوں بلکہ لفٹرز کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بسوں کی حفاظت کے لیے خصوصی ریمپ اور معیاری سہولتوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ جدید منصوبہ آغاز سے ہی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اربوں روپے مالیت کی یہ بسیں بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے نقصان کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ ریلوے واشنگ لائن کو نجی سیکٹر کے حوالے کرنے پر ملازمین سراپا احتجاج، TLA اسٹاف کا ملازمت سے برطرفیوں کے خلاف مظاہرہ، مظاہرین نے مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ ریلوے واشنگ لائن کو نجی سیکٹر کے حوالے کرنے پر ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ لاہور پریس کلب کے باہر TLA اسٹاف کا ملازمت سے برطرفیوں کے خلاف مظاہرہ۔ TLA اسٹاف نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلوے ملازمین نے کہا کہ 10 سال سے ریلوے واشنگ لائن میں کام کر رہے ہیں، کنفرم کرنے کی بجائے 260 ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمیں نوکریوں سے نہ نکالا جائے، وزیر ریلوے برطرفیوں کے احکامات واپس لیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارا کیا قصور ہے جو ہم 15 سال سے اپنی ریل کو خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہماری ایک سال کی انسپیکشن نہیں کی جاتی۔ ہمیں ذہنی ٹارچر ریلوے افسر جو ہے ریلوے واشنگ لائن میں کیا جا رہا ہے۔ غریب لوگوں کو جن کی 15 سال سروس ہے، 4 بچے ہو گئے ان کو اب نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ملازمت سے نکال دیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ چھیڑنے پر مؤثر جواب دیا۔ دشمن سیز فائر کرانے کے لیے امریکہ کے پاس جا پہنچا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے زیادہ مقدس کوئی بات نہیں۔ سینٹ اینتھونی ہائی اسکول میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ چھیڑنے پر مؤثر جواب دیا۔ دشمن سیز فائر کرانے کے لیے امریکہ کے پاس جا پہنچا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے زیادہ مقدس کوئی بات نہیں، ہمیں مل کر دہشت گردی انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے۔ کہا جاتا تھا ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس کے پاس رافیل ہے، اس کے پاس فلاں ہے۔ جب آپ متحد ہوئے، یہ قوم متحد ہوئی، آپ کی قیادت نے فیصلہ کیا تو چند گھنٹوں میں وہ بڑی قوت بھی جو تھی دنیا سے یہ کہہ رہی تھی کہ سیز فائر کروا دیں۔ ہمیں مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔
इस इंतहा पसंदी का मुकाबला करना है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि दीन में कोई जबर नहीं, जबरी शादी का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। मुल्क में सिपा सलार और पाक फौज के अलावा कोई कुव्वत और फौज नहीं है। जिहाद का मतलब बिगाड़ दिया गया। बेगुनाहों का कत्ल करने वालों की मुल्क में कोई जगह नहीं। जिहाद रियासत का हक है, रियासत जिहाद करेगी। अगर कोई मसला है तो अदालत के पास जाए। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ये जो कहते हैं कि जबरन मुसलमान बनाना, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। या जबरी शादी किसी गिरोह, फर्द या ताकत को जो इस मुल्क के अंदर मावराए आइन कानून आपके ऊपर अपनी मर्जी ठोंसने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। अगर किसी ने जिहाद करना है वो फौज में जाए, फौज में जाके दाखिला ले और फौज के नज़म के तहत जाके जहां ड्यूटी लगे ड्यूटी अदा करे, क्योंकि इस मुल्क का एक ही सिपा सलार है, इस मुल्क की एक ही फौज है, वो पाकिस्तान की फौज है। और इस मुल्क का सिपा सलार इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है। इसके अलावा यहाँ कोई और फोर्सेस या कोई और फौज और जत्था नहीं है। हाफिज ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि मसीहों ने सेहत का शोबा हो या मुल्क की दिफा, हर मैदान में अहम किरदार अदा किया। पैगाम पाकिस्तान को अमली तौर पर मुआशरे में नाफिज करना है। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान के उर्दू ज़बान में ट्वीट पर हिना परवेज़ भट्ट का रद्द-ए-अमल। हिना परवेज़ भट्ट का अरबी ज़बान में इज़हार यकजहती का तफसीली ट्वीट। कहा, पाकिस्तान और सऊदीया के बरादराना तल्लुकात और मजबूत रिश्तों पर फ़ख्र करते हैं। ये दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और ताउन की अक्कासी करता है। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि किसी भी जारियत के मुकाबले में हम एक साथ खड़े हैं। यह मुआहदा खित्ते के इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद का सहारा देता है। हमारी असल ताकत हमारी यकजहती और इत्तेहाद में है। पाकिस्तान और सऊदीया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना रहेंगे। दुश्मन के मुकाबले में एक होकर उम्मत मुसलमा की हिफाजत और अमन के लिए खड़े हैं। भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोकने की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इजलास में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। प्रधान कमेटी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि भारत अपने शहरियों को बुनियादी हक से महरूम कर रहा है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान न आने देने पर कमेटी की शदीद मजम्मत, मुत्तफिका करारदाद मंजूर। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन सिख बरादरी के लिए मक्का और मदीना की हैसियत रखती है। भारतीय हुकूमत का फैसला मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। जिस तरह मुसलमान बहन भाइयों के लिए मक्कातुल मुनव्वरा और मदीनातुल मुनव्वरा जो है वो आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है, और हर मुसलमान भाई अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिश रखता है कि वहाँ पे जाए, रोज़ा रसूल पे जाए। इसी तरह सिख 2 टाइम दुआ मांगता है कि ऐ खुदा मुझे ननकाना साहब और ऐसे स्थान जिससे मैं दूर हूँ, जिससे मुझे बिछोड़ा गया है, मुझे उसके खुले दर्शन दीदारे बख्शो। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा मुकद्दस मुकामात पर सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा। भारत बार बार अपने शहरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम कर रहा है। पाकिस्तान बार बार एक बात कर रहा है कि हम अपने सिख बहन भाइयों का ना तो वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, बल्कि जिन दिनों भारत ने पाकिस्तानियों का वीज़ा कैंसिल किया, उनको निकाला अपने मुल्क से, पाकिस्तान ने कहा कि हम सिख बहन भाइयों को वेलकम करते हैं कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। लेकिन भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाता है, पाकिस्तान की मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाता है, और तो और ननकाना सब को निशाना बनाता है, और फिर 7 मई को करतारपुर साहब बंद कर दिया जाता है। इजलास में चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर साजिद महमूद चौहान और एडिशनल सेक्रेटरी शराइन नासिर मुश्ताक और दीगर शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों से बाज रखा जाए। कैमरामैन नुमैर रईस के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 2 की कुरानंदाजी मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 9500 हाई पावर ट्रैक्टर की कुरानंदाजी का आगाज़ किया। पहला ट्रैक्टर अटक के राजा रिफ़त अब्बास और दूसरा नुज़रत परवीन, तीसरा मियाँ नसीर के नाम निकला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कामयाब किसानों को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा फेज 9500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया। पहला ट्रैक्टर अटक के राजा रिफ़त अब्बास, दूसरा नुज़रत परवीन और तीसरा मियाँ नसीर का निकला। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 की कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया, की हाल है, तुसी ट्रैक्टर वास्ते अप्लाई कीता सी, तुहाडा नाम निकल आया है।
वजीर आला मरियम नवाज की बातचीत, कहा तोहानू मुबारकबाद वास्ते फोन कीता है। सेक्रेटरी ज़राअत ने सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के बारे में ब्रीफिंग दी। 7 एकड़ या उससे जायद के अराजी मालिकान 75 से 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 ट्रैक्टर और मीडियम पावर स्कीम के तहत 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स फेज 2 मीडियम पावर ट्रैक्टर में 50 से 65 हॉर्स पावर और 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। आपको बताएं, पंजाब में सैलाब के बाइस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। मजमूई तौर पर 37,55,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 3700 से ज्यादा मोजाजात में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम जारी है, जिस दौरान मजीद नुकसानात भी सामने आ रहे हैं। PDMA की तरफ से जारी की जाने वाली नई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सैलाब के बाइस जाँ बहक होने वालों की तादाद 127 तक पहुँच गई है। बताया गया है कि मजमूई तौर पर 47,55,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 4700 से ज्यादा मौसाजात में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 319 रिलीफ और 407 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान सैलाब में फंस जाने वाले 26,22,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन तेजी लाई गई है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मगरबी हवाओं के बायस बनने वाला निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गया। आने वाले दिनों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। पंजाब में बदतरीन तबाही फैलाने के बाद दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी के बहाव की सूरत हाल बिल्कुल मामूल पर आ गई है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,04,000 और सुलेमानकी के मकाम पर 81,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 42,000, खानकी पर 44,000 और कादराबाद पर 37,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 8,000, शाहदरा के मकाम पर 9,000 और बल्लोकी के मकाम पर 31,000 क्यूसिक है। दूसरी तरफ चंद रोज से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशें बरसाने वाला निजाम भी मुकम्मल तौर पर रुखसत हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 से 12 रोज तक मौसम के गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके दौरान दर्जा हरारत भी बढ़ेगा। सूरत हाल में बेहतरी के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौजूद पानी भी बतदरीज कम हो रहा है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, कोट लखपत का इलाका चंद राय रोड मसाइल की अमाजगा बन गया। हमदानी पार्क में सीवरेज का निज़ाम नकारा, सड़कें बर्बाद, गंदे नाले से उठती बदबू, मक्खियों और मच्छरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। आपको बता रहे हैं कि इलाका मकीनों का कोट लखपत का इलाका जो है वो मसाइल की अमाजगा बन चुका है। हमदानी पार्क में सीवरेज का निज़ाम नकारा हो चुका, सड़कें बर्बाद, गंदे नाले से उठती बदबू, मक्खियों और मच्छरों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। कोट लखपत चंद राय रोड का इलाका हमदानी पार्क मसाइल में घिर गया। पुली के मुकाम पर सीवरेज सिस्टम नाकारा, बारिशों के दिनों में हर तरफ गंदा पानी फैला। ग्वाल मंडी मेन बाजार से मुल्हिका गलियों में बिजली के लटकते तार, ट्रांसफार्मर का बार बार स्पार्क और ट्रिपिंग होना मामूल बन चुका। शहरी हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगे। गवाल मंडी मेन बाजार, गंदा इंजन थाना रोड की मुतआदिद गलियां बिजली के लटकते तारों से मुतासिर, बिजली की बार बार ट्रिपिंग मामूल बन गया। गंदा इंजन मेन बाजार, थाना रोड, न्यू हॉस्पिटल रोड भी मुतासिर, शहरी खौफ में मुब्तला, लेस्को के खिलाफ फट पड़े। वज़ीर आला मरियम नवाज को अपने हल्के के मसाइल फौरी हल करने का मुतालिबा किया। 8-9 घंटे यहाँ पे लाइट जाती है, लाइट डिम रहती है, सही करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। कितने घर ऐसे हैं जिनका कोई सामान जल गया। मेरे अपने घर की फ्रिज, टीवी जो LCD सड़ी हुई है, ये लाइट डिम की वजह से। बिजली की तारें जो है ना वो लटकी हुई हैं। बिजली की तारों की वजह से हम घरों में बहुत मजबूर हैं। हमारी मजबूरी मरियम साहबा समझे प्लीज। फ्रिजें जल रही हैं, मशीनें जल रही हैं, UPS जल रहे हैं, फैन जल रहे हैं। बिजली के तारों के नाकिस निज़ाम के तहत कई बार गवाल मंडी के रिहायशियों की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जल चुकी हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारफ़ करवाने वाला सूबे का पहला रीजन बन चुका है। पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की सरबराही जर्मन पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर स्टीफन माइकल ने की। वफ्द में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी अस्पताल, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर और होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के माहिरीन शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कोआबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से
तकमील के मराहिल तय कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआविनत को सराहा जाएगा। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। हाइडलबर्ग के लॉर्ड मेयर प्रोफेसर डॉक्टर इकार्ड विजनर ने वजीर आला पंजाब की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी लीडर हाइडलबर्ग सिटी काउंसिल वसीम बट ने कहा, लाहौर और हाइडलबर्ग के दरमियान तालीमी और सकाफती रवाबित को महफूज बना रहे हैं। खैबान फरदौसी जोहर टाउन में पुरानी सीवरेज लाइन की तब्दीली न हो सकी। वासा और LDA की हिकमत अमलियाँ भी बेअसर। मनसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 2 अरब रुपए है। खैबान फिरदौसी जोहर टाउन में पुरानी और बोसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली का मंसूबा वासा ने फरवरी 2025 में शुरू किया, जो अभी तक अधूरा है। शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल चौक तक सड़क की तामीर समेत मुल्हिका इलाकों के कनेक्शंस भी ताहाल नहीं जोड़े जा सके। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ नाकाम साबित हुई। डेडलाइन के मुताबिक नई सीवरेज लाइन अब तक नहीं डाली जा सकी। शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल चौक तक सड़क की तामीर भी बादस्तूर ताखीर का शिकार है। मंसूबे की तकमील में सबसे बड़ा मसला मुल्हिका सड़कों और सीवरेज कनेक्शंस के ना जुड़ने का है। F1 और F2 ब्लॉक के कनेक्शंस अभी तक नई लाइन से नहीं जुड़ सके, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी और पंजाब सोसाइटी के कनेक्शन भी ताहाल ना हो सके। तकरीबन 2 अरब रुपए लागत के इस मंसूबे की ताखीर ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। 1 अरब 17 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन की तनसीब और 90 करोड़ रुपए सड़क की तामीर पर खर्च किए जा रहे हैं। शौकत खानम फ्लाईओवर से शादेवाल चौक तक सड़क की ताखीर ने ट्रैफिक मसाइल को मजीद बढ़ा दिया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास NSIT सिटी के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। मंसूबे की पेशरफ्त और बरवक्त तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। CEO इमरान अमीन का कहना था कि NSIT सिटी पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर का गेम चेंजर मंसूबा है, जिसकी बरवक्त तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। ब्रीफिंग में बताया गया कि NSIT सिटी की मरकजी ड्रेन 85% मुकम्मल हो चुकी है। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट प्लान की तकमील के बाद 2000 से ज़ायद गाड़ियों की गुंजाइश दस्तयाब होगी। इजलास में CBD पंजाब के अफसरान, नेस्पाक और कॉन्ट्रैक्टर के नुमाइंदे शरीक हुए। न्यू स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।